So we have the Mumbai Indians to meet Punjab Kings at the Wankhede Stadium in one of their IPL matches, which they need to win quite badly. Now, as far as the markets today concerned, one of the I would say in my memory, this was one of the more difficult days. The volatility that we saw was really immense. And 10-15 minutes moving up, down, starting well, but not sustaining. A pretty tough day, I would say. And we were very much tuned. We kept advising our people in a group, and that's why I couldn't make a YouTube in the morning also today. We gave a Sensex, since it was a Sensex expiry day, we gave a Sensex 78,000 put, which in just 8 minutes rose from 17 to 54. So that became a wonderful hero zero call. We had exactly, we said that between 3 and 3:15 the market will fall. This was timing it perfectly. At that time this put had come down, and because between 2:15 and 3 we saw a good recovery in the Nifty. Okay, so it was a very difficult. All these predictions were pretty tough today. We had to put a lot of effort, but particularly this hero zero put, Sensex 78,000 put, fantastic, ran from 17 to 54 in no time. And then we had to ask people to leave also, book profits and leave, because it's not just making money but पैसा लेके चले जाइए, वो बहुत ज़रूरी था. तो ये सारा काफ़ी एफर्ट लगा हमें. मार्केट थोड़ा सा इरेटिक रह सकता है, केयरफुल रहना है आपको. ये वीकेंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, वैसे भी विश्व के लिए थोड़ा टेंशन फिल रहेगा. ये कुछ 1-2-3 दिन मुझे लग रहा है कि इस तरह के ही मूवमेंट्स सडन जो चेंज होके और आपको पैसा भी बना के देंगे, ऐसे हो सकते हैं. और आपका जो भी ग्रुप जो पसंद है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर 9820861044. विश्व में कई चीज़ें हो रही है जो इसके अलावा, निफ्टी के अलावा वगैरह, आपको देखना, ध्यान में देखना है. एक तो फेड के जो न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम्स, उन्होंने भी एक व्यू रखा है कि द राइजिंग इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द वॉर एंड टैरिफ्स, कठिनाई हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो रहा है अमेरिका में. तो अभी कई लोग हैं जो कि व्यू रख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम करना बहुत मुश्किल होते जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ भी स्लो हो रहा है, तो एक स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो आ रहा है. ये फेड प्रेसिडेंट John Williams says. So that's also something which is a view that he is considered, and the markets, when they open for trading today, they will take that into consideration. Next couple of days could be a little shaky for the world financial markets. Be a little cautious, and time to time हम टाइम फिर भी निकाल के आपको कुछ तो ट्रेड्स अच्छे देते ही हमारे ग्रुप्स में. ये फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा है, हो जाता है अच्छा. पुटिन आज बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा क्योंकि बहुत वायलेंट मूव्स थे, और सेंसेक्स एक्सपायरी भी थी तो उसके स्टेक्स भी बहुत हाई थे, लेकिन बना के दे दिया पैसा लोगों को, चलो ठीक है. और दूसरे न्यूज़ में जो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अमेरिका में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि बैंक्स को, जैसे भारत में होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर, वैसे वहाँ भी केवाईसी अब थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और लोगों का स्टेटस, लीगल स्टेटस देखा जाएगा कि आपके पास यूएस का पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है या कोई वैलिड वीज़ा है, फ्री बैंक अकाउंट खुलेगा, नहीं तो नहीं. ये एक वो स्कॉट बेसेंट ने हैज़ जस्ट ही गेव एन इंटरव्यू टू CNBC's Sarah Eisen at the Invest in America forum on Tuesday, that the Trump administration expects banks to comply with a mandate to collect the citizenship data. So the administration has been considering an executive order to require banks to request additional documents from customers
and that's what he's saying. So this executive order or EO should be there soon, and if the treasury and the banking regulators tells the banks that it's their job, then it's their job. So what he's trying to say is that that nobody who is not legally present in the United States will be able to open a bank account. So ये सब चीज़ें जो है, United States, as you know, like other countries, uses know your customer rules for bank accounts to prevent money laundering and other forms of financial crime, verifying client identities, assessing risks, and monitoring transactions to prevent fraud. And laws include, of course, the Bank Secrecy Act, or BSA as it is popularly called, and also the USA Patriot Act, which underpins efforts to verify customers. The banks collect the social security numbers or an individual taxpayer identification number, ITIN, names, dates of birth, addresses, among other documents. So ये सब लेने के बाद ही बैंक अकाउंट खुलेगा. जो टाइम्स टू कम कठिन होते जाएगा, ऐसे ही किसी को भी जाके बैंक अकाउंट खोलना अमेरिका में. ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है. वक्त के बहुत पाबंद रहे हैं. विदेश में आप कहीं भी जाते हैं तो एक क्लोज करने से पहले एक न्यूज़ आइटम आया है कि देयर इज एन इंडियन फैमिली विच हैड गॉन टू जापान एंड दे हैड रेंटेड किमोनोज, जो जापानीज ड्रेस है वो पहनने के किए थे, और ऐसी बात हो गई कि दे हैड टू रिटर्न इट बाय 5 o'clock in the evening और दे वर 37 minutes लेट. तो यहाँ जो भारत में से कई लोग ना, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कहते हैं ना ठीक है थोड़ा हो जाता है, ऐसा वहाँ नहीं चलता. उनको एक जो है फाइन लगाया जो शॉपकीपर ने 37 minutes लेट के हिसाब से भी, और 1100 yen पर पर्सन फॉर एवरी 30 minutes ऑफ डिले. तो 5 लोग थे और 37 minutes लेट थे. हाँ, इसके हिसाब से देखे तो 2200 येन पर पर्सन उनके ऊपर फाइन लगाए. और जब उन्होंने उनको बोला कि भाई साहब थोड़ा सा थोड़ा कम कर दीजिए, तो जापानीज़ पुलिस आ गई. और ये चीज़ जो है कई भारतीय लोगों को बुरा नहीं माना, लेकिन कहना सीखना चाहिए कि किस तरह से वक्त के पाबंद हैं अमेरिका में, और आप लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि 37 minutes कितना भारी पड़ गया. 2200 येन पर पर्सन इतना फाइन लग गया, और वो फाइन लगने के लिए आर्ग्यू करने बैठ गए तो जापानीज़ पुलिस भी आ गई थी. चलिए, लेकिन वक्त जो है भारतीय मार्केट्स को भी, हाँ ऐसा नहीं है. अभी लास्ट 2 दिन से देखेंगे तो, और उससे पहले भी मेरे ख्याल से FII नेट पॉजिटिव हो गए हैं, बाय कर रहे हैं. इनफैक्ट DIs अभी नेगेटिव हो गए. ठीक है, मौसम अच्छा है, 2-3 दिन थोड़ा संभालना है. अच्छे पीरियड्स टाइमिंग्स दूंगा, ज़रूर ज्वाइन करिए प्रीमियम प्लस. 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में, अच्छी मल्टीबैगर भी. संपर्क करने का नंबर वही, व्हाट्सएप करें 9820861044. नमस्ते.